अन्ना रियली गुड टू सी यू। बहुत मुश्किल से आप कहीं जाते हैं और किसी भी ब्रांड का हिस्सा बनते हैं, क्या खास आपको लगा है नहीं यू आर हियर फॉर द ब्रांड? I think an obsession with sunglasses and an obsession with this concept. बहुत पहले से हम सोच रहे थे कि ऐसे कुछ करना चाहिए और जब मौका मिला इनके साथ जुड़ने का आई थॉट इट वाज द बेस्ट बिकॉज आई थिंक स्पेक्टा इज आप कलेक्शन भी देखोगे तो जापानीज से लेके अमेरिकन ब्रांड से लेके इटालियन ऑल द ब्रांड्स दैट वर्क इंटरनेशनली आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ दिस. बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं शायद जो आपको कहीं नहीं मिलेगा इंडिया में जो एक्सक्लूसिवली स्पेक्टा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं. तो आई थिंक anything to do with fashion, anything to do with style, though I'm very traditional when it comes to all that, but love to be a part of it. You was one of the style icon in the industry from out और we have seen you है ना, चाहे Right. फिटनेस की मैं बात करूँ, Right. कौन इतना फिट होगा? हाँ वो तो है. तो क्या सजेशन देना चाहेंगे और will be the targeted audience if we can ask? I think anybody who believes he wants to dress differently, anybody who believes that they have a style of their own, anybody who believes that I want fashion that is, numero uno in the world today. I think those are the people who like to dress well and of course who want to protect their eyes with these beautiful glasses. See, for me, I'm an aviator guy. I love aviators, whether it's rimless frames or otherwise. I stick to something that is aviators, which is traditional. But Tia is always wearing different kind of glasses. Ahan loves stuff that is so different. So I think it covers everybody. Okay, what would you say? Anna is here to support and he's here for the launch. कितने गौरव की बात है, कितने प्राउड की बात है, he's supporting. Anna's been with us for quite a long time, more than 15 years, and we've always been trying to do something different. I think with Spectre we've cracked something really unique. We've got a collection of brands that even stores in Europe don't have together in one location, and we want to bring the best of style to India, and Bombay is the fashion capital. And with Anna's support, I think we'll really take it places. It means we'll see more of Bollywood people returning here at this place because, as you said, I'm sure that's it. Edgy. It's edgy. It's different. So if anybody wants something that is different, you don't have to travel internationally. And trust me, the pricing also. The pricing is also extremely competitive. You'll probably get it in the same price anywhere else in the world. But then why travel when you can get it here? And for movies, it is finally a style statement. It makes a hell of a lot of difference. So of course. okay, Ahan is doing his debut. If you Right. talk about Ahan, I think Ahan is blessed. I say blessed because he's got Sajid Bhai as his mentor. Now after Sajid Bhai, he's got Milan. Someone whom I've always admired as an actor. I've always thought that Milan की एक फिल्म में का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि he presents you like a man. And again, RX100 is a cult love story, a true story. Rajat doing the dialogues of the film. So when you have Sajid Nadiadwala as his mentor, Nadiadwala grandson as the promoters, as the producers, and Vardha as the producer, you have Milan as the director, you have Rajat writing it. All he needs to do now is work hard, work bloody hard, and give his best. Be honest, be sincere with his work, and rest. Lady Luck smiles on him, he's set. any tips you have given to him? Yeah, be honest to your work. Love your producer like you would love nobody else. क्योंकि पैसे सिर्फ वो डालता है और अनफॉर्चुनेटली हमारी दुनिया में प्रोड्यूसर को हम प्रोडक्शन मैनेजर की तरह ट्रीट करते हैं. जो आज लोगों को पता चल रहा है कि how important saving is, how important money is. So I think these are the only things I tell him, and then go with your gut feeling. Subject के साथ जुड़े रहना और जो भी करो सिंसियरली करो और कम काम करो और live life king size. Okay, दिया मिर्जा ने हाल ही में एक बयान दिया है जब पूरे के पूरे इंडस्ट्री से लोग पीएम नरेंद्र मोदी से जाके मुलाकात करी और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े मुद्दों की बात हुई, कैसे और सुधार करा जा सकता है. दिया ट्वीटेड कि एक महिला को भी इंडस्ट्री से होना चाहिए था. व्हाट्स योर टेक ऑन? Absolutely, I thought it was. I don't think it was intentional, but महिला का होना बहुत ज़रूरी है. जब आप महिलाओं को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हो और हर पोजीशन पे वो है तो उनका रहना बहुत ही ज़रूरी था. Probably impromptu होगा और इसलिए हुआ neglect, but intention I'm sure was never that way. Bollywood is always like a family,
अनगिनत लोग, टेक्नीशियन हो, फिल्म स्टार हो, सिनेमाटोग्राफर हो, एडिटर हो, सब एक फैमिली की तरह रहते आए और हम देखते हैं बीइंग एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट। नसीर साहब को लेके, नसीर साहब के एक बयान को लेके जो विवाद खड़ा हुआ है, इससे पहले आमिर साहब ने कुछ कहा था और फिर अब नसीर साहब ने कहा है। अन्ना, क्या कहना चाहेंगे इस तरह के जो विवाद खड़े हो जाते हैं? डू यू एग्री बॉलीवुड इज ऑलवेज अ सॉफ्ट टारगेटेड किंग? Yes, but it's not. It's one probably individual who twists and turns it and edits it the way they want and presents it the way they want that makes the difference. अभी हाल ही में मैंने कुछ कहा था विराट के बारे में, तो मैंने नसीर जी भाई के अगेंस्ट कुछ नहीं कहा था। मैं विराट के आई वॉज इन फेवर ऑफ विराट। तो ओपिनियंस अपने अपने होते ही है ना, एवरीबडी हैज़ देयर ओन ओपिनियंस एंड आई फेल्ट विराट्स अप्रोच इज़ फैंटास्टिक टू क्रिकेट। लेकिन कोशिश तो यही रही कि ये बोलना कि सुनील शेट्टी इज़ गॉन अगेंस्ट नसीर भाई। मुझे किसी के अगेंस्ट जाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी के साथ अग्री करूँ और उनके सपोर्ट में कुछ कहूँ। मेरा सपोर्ट इज़ टू विराट एंड आई लाइक हिम एज अ क्रिकेटर। Okay, the last one, we met yesterday somewhere in South, Nasir Saab, and he said, I stand what I said. And he said, कि being a Muslim, if you express anything, एक मिनट में आप गद्दार हो जाते हैं। अगर आप अपनी दिल की बात रखते हैं। I don't think it is being a Muslim or being a Hindu or being a community wise. I think being an actor हमको एलियनेट करते, हमारी बातें नहीं सुनते, जो बहुत बुरी बात है। हम कुछ भी करें तो गलत, और यू नो, सो दैट्स द प्रॉब्लम। ज़रूरत हमारी सब जगह, पॉलिटिक्स में हो, स्पोर्ट में हो, चैरिटी में हो, किसी भी चीज़ के लिए एक एक्टर बिना सोचे आगे आ जाता है, लेकिन जब उसको लटकाना होता कितनी आसानी से लटका भी देते। सो दैट इज़ द सैड पार्ट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट नसीर भाई इज़ ट्राइंग टू से, यू नो, एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ही इज़ राइट कि हमें एक्टरों को क्यों लटकाया जाता है हमेशा, हम क्यों सॉफ्ट टारगेट्स बनते हैं। देखिए, मेरा एक ही मानना है, ये शायद इसीलिए होता है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल है। मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी लाइक्स के बारे में बॉदर नहीं किया। मैंने रिस्पेक्ट गेन करने की कोशिश की, और रिस्पेक्ट आपको सिर्फ निजी ज़िंदगी में मिलता है, सोशल मीडिया पे नहीं मिलता। तो जितनी ज़रूरत है वहीं हम उतना ही करें तो अच्छा है। आज के बच्चों को पता ही नहीं कि रियल वर्ल्ड क्या होता है, कि कैमरामैन कौन होते हैं। ये बच्चे जो आप लोग जो काम करते हो, कितनी मेहनत होती है उसमें, एक सेकंड में निकल जाते हैं बिना हाय हेलो भी बोले हुए, क्योंकि उन्हें कहा जाता है, उन्हें सिखाया गया कि स्टे अवे एंड यू विल बी मोर एक्सक्लूसिव। बट टू ईच इज ओन, एंड व्हाट कैन आई से। न्यू ईयर आने वाला है, क्या रेवोल्यूशन है इस साल पे? इस साल का कुछ नहीं, और फिट बनूंगा और ज़िंदगी जीऊँगा, खुश रहूँगा। कॉम्प्लेक्स किसी का है नहीं, अपनी दुनिया में हूँ और खुश हूँ, और वैसे ही रहना चाहता हूँ। Thank you. So guys, all you guys who are watching, Merry Christmas and a very very Happy New Year. Genuinely इस साल को आप हैप्पी बनाइएगा। हैप्पी न्यू ईयर का मतलब है हैप्पी रहना। तो रेजोल्यूशन कुछ भी हो, हैप्पी रहना।